Good morning, student. I am Professor Natish Sayyed, Head of Department and Subject Teacher for Emerging Trend in Civil Engineering. Emerging Trends in Civil Engineering is a subject which deals with the recent technologies, software, materials, the methods used in civil engineering for the construction, various equipment used in civil engineering, various software used in civil engineering are the backbone of this subject. Then we will start from unit number 1, that is soft computing techniques. Soft computing techniques, as the name suggests it is a software or computer technology based unit. In this unit we have to learn about soft computer techniques, its types, merits and demerits of soft computing technique, graphical interface software, and various software used in civil engineering. Then vision mission of program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and mission to fulfill this vision is effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Then learning outcome you will be achieving during this session is enlist the characteristic use of soft computing techniques in civil engineering, identify merits and demerits of soft computing techniques. Course outcome mapped with this unit is reveal different application of softwares for planning, designing and execution of project. Then POs mapped with this unit is one. Please keep in mind there is one new replacement with the POs. Earlier we had learned 10 POs, but as per the new norms we will having only 7 POs. So PO1, PO3, PO4, PO5, PO6 and PO7 are highly mapped with this unit, whereas PSO1 and PSO2 are also mapped. Then soft computing techniques. Soft computing is defined as a group of computational technique. Computational technique मतलब computerized based technique on artificial intelligence, that is human like decision, and natural selection that provides quick and cost effective solution to very complex problem for which analytical, that is hard computing formulation do not exist. सॉफ्ट कंप्यूटिंग मतलब क्या? कंप्यूटर का ऐसा यूज़ करना सिविल इंजीनियरिंग में जो कि हमारे वर्क को क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे. जैसे कि अर्लियर डेज में ऐसा होता था, अगर हमको प्लानिंग करना है हम मेजरमेंट लेते थे. हम मेजरमेंट लेने के बाद मैप, स्केल, रोलर स्केल, पेंसिल, ड्राफ्टर, ये सब का यूज़ करके हम क्या करते थे, प्लानिंग बना के उसका ब्लूप्रिंट निकालते थे. पर अब क्या हो गया, ऑटोकैड आने के बाद हम लोग डायमेंशन डायरेक्ट फीड करते हैं, आपका प्लान रेडी. तो क्या हुआ, सॉफ्ट कंप्यूटर आया, कंप्यूटिंग टेक्निक आई, सॉफ्टवेयर आया, तो क्या हुआ, क्विक हो गया, इफेक्टिव हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक. सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल आइडियाज़. इसमें नेचुरल आइडियाज़ मतलब आपके दिमागी तौर से जो नेचुरल आइडियाज़ आप देने वाले हैं, या फिर आर्टिफिशियल आइडिया मतलब जो आप डेटा फीड करके आपको कंप्यूटर देगा, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल आइडियाज़. देन सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स आर फिजियोलॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन एंड मशीन लर्निंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग. अब इसमें वेरियस अपने सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक क्या रहता है, लॉजिकली रहता है. मशीन लर्निंग मतलब मशीन के हमको पहले सॉफ्टवेयर लर्न करना पड़ता है, कंप्यूटर लर्न करना पड़ेगा, उसके सिवा हमको ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के यूज अब नहीं कर पाएंगे. देन मेरिट्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स. मेरिट्स मतलब फायदे, उसकी यूजफुलनेस, उसकी अच्छाई. असिस्ट इंजीनियर्स इन सॉल्विंग लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स वेयर मैथमेटिकल मॉडल्स इज़ नॉट अवेलेबल. जहाँ पे हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जहाँ हमको कैलकुलेशंस बहुत हार्ड जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स में
वो मेथड पुट कर दो, आपको सीधा आंसर मिल जाता है। ई टैब्स, रेवाइट्स, ये सब जो हमारे को स्ट्रक्चर्स, ये जो सब सॉफ्टवेयर्स मिले हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम लोग फीड कर दे रहे हैं और एक्यूरेट उसकी हमको वैल्यू मिल रही है। अर्लियर डेज में विंड लोड, लाइव लोड, लेफ्ट डेड लोड्स, ये सब अजम्पशन बेस्ड रहता था कि हमको बहुत सारे अजम्पशंस कंसिडर करना पड़ता था, पर अब हम अजम्पशन को छोड़ के एक क्विक डिसीजन सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के भरोसे ले सकते हैं। Softwares can increase productivity and efficiency in designing and modeling in every subset of the technological field. अब पहले ऐसा होता था, हम मैप बना रहे, उसमें कोई करेक्शन करना पड़ रहा, फिर से हम उसको रीडिज़ाइन कर रहे। अभी ऐसा है, सॉफ्टवेयर में करेक्शंस करना है, सॉफ्टवेयर में उसकी जगह कुछ दूसरी इनपुट दे दो, तुरंत तुम्हारे करेक्शन। तो क्या हो गया, ये प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, इफ़िशियंसी बढ़ गई, उसका टाइम कंज्यूम हो गया। तो ये पॉइंट का मीनिंग वो। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स वन कैन ईजिली अल्टर द मेथोडोलॉजिकल एंड डिज़ाइन सोल्यूशन। उसको हमेशा हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ईजिली सोल्यूशन हम दे सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बढ़ गई है, प्रिसीजन्स, कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या हो गया है ना कि सॉफ्टवेयर्स आने से थोड़ा लर्निंग का हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई इफ़ेक्टिव लर्निंग हो चुकी है, बच्चों में, हम में इंटरेस्ट ज़्यादा जग रहा है। Then software develops the communication and collaboration between the engineers and users. अब यूज़र जो है, सॉफ्टवेयर हमने ऑटोकैड में एक डायग्राम, हमने एक प्लान बना लिए। अब जिसके लिए हमने बनाया वो आया, हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं इसके जगह ऐसा होना था, वैसा होना था। तो इंजीनियर क्या कर रहा है, तुरंत उसमें इनपुट देके उसको चेंज कर दे रहा है। तो यूज़र्स और इंजीनियर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा क्लोज हो गया, ज़्यादा कोलैबोरेट हो गया कि नहीं, यूज़र्स भी ये समझ रहा है कि जो यूज़र बोलना चाह रहा है इंजीनियर वही बना रहा है, और जो इंजीनियर बना रहा है वही यूज़र समझ रहा है। तो ये दोनों के बीच के रिलेशंस, कोलैबोरेशंस ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। देन द सॉफ्टवेयर टेस्ट एक्यूरेट मैपिंग, जनरेशन, एनालिसिस एंड मॉडल थ्रू सिमुलेशन। सॉफ्टवेयर्स की जो टेस्टिंग वगैरह हो रही है एकदम एक्यूरेट आ रही है, कोई उसमें अप्रॉक्स या फिर अजम्पशंस, ये नाम हमारे इससे अब हट चुके। देन प्रोवाइड द नंबर्स ऑफ बेनिफिट फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द इंडस्ट्री वर्क कल्चर, प्रोडक्ट क्वालिटी। अब इससे ऐसा हो गया है कि ह्यूमन एरर कम हो चुके हैं, तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। द सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हेल्प इन गेटिंग एक्यूरेट सोल्यूशन इन शॉर्ट टाइम सो दैट स्ट्रक्चर बीइंग कंस्ट्रक्शन विद इन शेड्यूल, सेफ एंड स्टेबल। अब क्या हो गया, टाइम बच गया, ड्राइंग का, सॉल्यूशन का एकदम शॉर्ट टाइम हो गया। तो उससे क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो एकदम विद इन शेड्यूल के हिसाब से बन रहे हैं, सेफ है और स्टेबल बन रहे हैं। इट गिव्स क्लोजर टू ह्यूमन थिंकिंग एंड रोबस्ट सॉल्यूशन एट रीजनेबल कॉस्ट। कॉस्ट हमारा कम हो चुका है। सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक्स डील विथ एम्बिशियस सिचुएशंस लाइक इम्प्रेशन एंड अनसर्टेनिटी। अब इससे सॉफ्ट कंप्यूटर से क्या हो रहा है कि जो वो आउटपुट आ रहा है वो एकदम ही एम्बिशियस रह रहा है, एकदम इम्प्रेशन उसका ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब मेरिट्स है सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के। पर एज यू ऑल नोज, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें डीमेरिट्स रहते ही है। तो हमारा अब अगला टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। जहाँ वायरस था उसके लिए एंटीवायरस निकाले, तो वायरस के जो हमारा सिस्टम ख़राब कर रहा था वायरस, उसको अच्छा करने के लिए एंटीवायरस आ गया। अब सॉफ्टवेयर ने सिस्टम अच्छा किया है तो उसके थोड़ा ना थोड़े कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे ही, जैसे कि डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। अब जो पहले के रिनोन इंजीनियर्स थे जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते हैं, अब वैसे इंजीनियर्स मिलना, हमें थोड़े से एक्सपर्ट मिलना हमको क्या हो गया है, डिफ़िकल्टी जा रही है। अभी ये जनरेशन, अभी जो इंजीनियर्स बन रहे हैं लास्ट 5 ईयर से या लास्ट 7-8 ईयर से, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के बारे में पता चल रहा है। पर जो पहले के एकदम रिनोन इंजीनियर है उनके पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक की नॉलेज थोड़ी कम है। देन द लर्निंग कर्व्स में स्पेशली डिफ़िकल्ट टू दोज हु आर नेवर इन द फील्ड। अब उनको ये लर्न करना, ये समझना भी मुश्किल जा रहा है क्योंकि वो इस फील्ड से दूर थे, इस फील्ड में थे ही नहीं।
कंप्यूटिंग के बारे में जानते ही नहीं है, सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक्स के बारे में जानते ही नहीं है, सॉफ्टवेयर हैंडल करना आ ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ा उनको लर्निंग परेशानी जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब जो पहले के कंप्यूटर जिसके पास है उसमें उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि अब हमको लेटेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल करवाना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए स्पेस ज़्यादा रखता है, रैम ज़्यादा रखता है, हार्ड डिस्क ज़्यादा रखता है, मेमोरी ज़्यादा लगती है, तो ये उसके डीमेरिट्स हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, आप कहाँ कहाँ एप्लीकेशन उसको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक का। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक इन द डिफरेंट एरिया सच एज हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, आप हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, इमेज प्रोसेसिंग एंड डाटा कंप्रेशन कर सकते हैं, डिज़ाइन और डिटेलिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिव सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल व्यू आप अपने बिल्डिंग को इजीली दे सकते हो। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो आप ये सब एप्लीकेशन उसमें कर सकते हैं, वेरियस जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, क्या मतलब यानी ऐसा क्या चीज़ है जो इसको हट के इस टॉपिक को बहुत हटा देती है, एकदम हट के बनाती है। सबसे पहले ड्राइंग, हम इससे ड्राइंग कर सकते हैं। दिस फीचर्स अनेबल्स टू यूजर टू ड्रॉ बेसिक लाइन, क्रिएट प्लान एंड शेप इन फास्टर टू एक्ट एज द फाउंडेशन डिजाइन फॉर द स्ट्रक्चर। हम जीरो से डेस्टिनेशन तक कुछ भी, कैसा भी, कोई भी एंगल में, कोई भी डायरेक्शन में इसको हम ड्राइंग कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग क्या है, दिस फंक्शन अलाउज यूजर टू क्रिएट 3D मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर दे आर डिजाइनिंग। दिस मॉडल कैन बी फ्लेश्ड आउट विद रियलिस्टिक डिटेल्स सो दे कैन लुक एज क्लोज टू व्हाट द इंजीनियर एनविजन्स एज पॉसिबल। हमने पहले सिर्फ प्लान बनाते थे तो हमको हमारा दिमाग लगाना पड़ता था, यार ये कैसा दिखेगा। अब क्या हो रहा, सॉफ्ट कंप्यूटिंग से 3D मॉडलिंग अगर हम एक फीचर्स उसका प्ले करते हैं तो वो बिल्डिंग कैसी दिखेंगे अपने आप उसमें 3D मॉडल दिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एडवांस फीचर हो गया। एडिटिंग, सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन टूल्स प्रोवाइड द कैपेबल फॉर यूजर टू एडिट देयर डिजाइन एज दे डीम नेसेसरी विथ फंक्शनैलिटीज सच एज इरेज, ट्रिम, अनडू और मोर। आपको जितने बार जैसा भी उसको रीशेप करना है, रीमॉडल करना है, एडिट करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, आप कितने भी बार कर सकते हो। देन रेंडरिंग, दिस फीचर टेक्स अ 3D मॉडल एंड प्लेस इट इनटू अ फुली रियलाइज्ड 3D एनवायरनमेंट सो दैट यूजर कैन बेटर विजुअलाइज व्हाट एंड हाउ देयर फाइनल प्रोडक्ट विल लुक लाइक। रेंडरिंग से आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आप पहले ही उसको देख सकते हो। फाइल interoperability, this ensures that the file created from the solution is compatible with a number of advanced design and imaging application। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो डिज़ाइन है वो compatible है एडवांस डिज़ाइन और इमेज एप्लीकेशन से, हम लोग इससे अपना देख सकते हैं। देन सीक्वेंसिंग, हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा कैसा वर्क फ्लो होगा, मटेरियल कैसा लगेगा, कैसा उसमें एनिमेट करना पड़ेगा, ये सब हम लोग सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस से कर सकते हैं। एडवांस फीचर, यूनिक फीचर्स लाइक एनालिसिस ऑफ डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर एलिमेंट, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ वेरियस एलिमेंट, स्ट्रक्चरल डायनामिक एनालिसिस एंड चेकिंग। हम वेरियस फीचर्स कर सकते हैं उसमें, हम उसको स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, हर एक लोड, हर एक मॉडल, हर एक डायनामिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कितना, कैसा, कब, कैसे लोड लगेगा, लाइव लोड रहेगा, विंड लोड रहेगा, डेड लोड रहेगा, तो हम ये सब उसको देख सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। क्या रिक्वायरमेंट है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स, सस्टेनेबल डिजाइन हैज़ बिकम एन इनक्रेडिबली रेलेवेंट ट्रेंड विद इन द कंस्ट्रक्शन engineering field। that means there will be element for smart material, intelligent electric grid, smart building and more। आपको सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स एक डिज़ाइन करना होगा, यही उसकी रिक्वायरमेंट है। देन एडवांस मटेरियल, द सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज स्टार्टिंग टू इंट्रोड्यूस एडवांस मटेरियल दैट आर एबल टू अडेप्ट द एक्सटर्नल कंडीशन एज दिस बिकम मोर रिलेवेंट इन इंडस्ट्री। तुमको एडवांस मटेरियल अब यूज़ करना होगा।
देन 3D प्रिंटिंग, आपको 3D प्रिंटिंग का नॉलेज पूरा लाना होगा, आपके पास अवेलेबल रहने को ना इसका ट्रेंड, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में ऐसा होगा जब वो 3D मॉडलिंग कर सकता है, आपके पास 3D प्रिंटर अवेलेबल रहना चाहिए, तब वो मॉडल बराबर दिखेगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है जिसमें आप देख सकते हैं क्या फ़ोटोज़ का आइकॉन दिख रहा है, नेट का है, कैमरा है, म्यूज़िक है, सेटिंग है, स्टार्ट मेन्यू है। तो ये सब जो आइकॉन्स आपको स्क्रीन पे दिखते हैं इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? दिस इंटरफेस अलाउ द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू कीबोर्ड, माउस एंड मेन्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड, माउस, मेन्यूज, ये सब जो आप यूज़ कर पाते हो ये किसके बदौलत है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। हार्डवेयर यूज़र इंटरफेस इंक्लूड्स वायर, प्लग एंड सॉकेट्स दैट हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हार्डवेयर पार्ट कौन सा है? सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर का। हार्डवेयर मतलब जो तुम मशीन्स देखते हो, वायर, प्लग, ये सब, तो ये क्या अलाउ करता है? उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर इंटरफेस। GUI is a collection of software program that use the computer graphics to make app easy to use and allow user to interact with the electronic devices through graphical icons and visual indicators। माउस का पॉइंटर दिखता है आपको, स्क्रीन पे मेन्यूज दिखते हैं, आप डबल क्लिक करके कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो ये सब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which allows and make the app easy। So components क्या है GUI के? पॉइंटर, सिंबल ऑन स्क्रीन, माउस का पॉइंटर, आइकॉन्स, विंडोज, मेन्यूज, स्क्रॉल बार्स, टैब, मेन्यूज एंड इनपुट डिवाइस टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। सो आपका असाइनमेंट नंबर 1 क्या रहेगा? 4 क्वेश्चन है आपको असाइनमेंट नंबर 1 में। आपको एक असाइनमेंट कॉपी बनाना है, नोट्स के और ये वीडियोस के हेल्प से आपको ये असाइनमेंट, मुझे 1 तारीख को आपको ये वीडियो आया है, आपको 3 तारीख तक मीन्स सैटरडे तक अपने गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड कर देना है। आफ्टर सैटरडे जो अपलोड करेगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा और असाइनमेंट्स के मार्क्स को नहीं मिलेंगे। ओके, देन असाइनमेंट सबमिट करते वक्त टॉप पे, हर एक पेज के टॉप पर आप अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखोगे। हर एक पेज के, अगर 4 पेज में आपका ये असाइनमेंट हुआ है तो चारों पेज के टॉप पे आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर दिखना चाहिए। देन हमने आज क्या देखे ये वीडियो में? सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक क्या था, मेरिट्स उसके फ़ायदे, डीमेरिट्स उसके नुकसान, एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते उसके लिए फीचर्स, देन रिक्वायरमेंट सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन की, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो थैंक यू। गूगल क्लासरूम में ये वीडियो के लिंक के नीचे LBD की लिंक गई है, गूगल फॉर्म है, वो सॉल्व करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर में अब तक आ चुके हैं। टोटल 32 सॉफ्टवेयर्स है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स हमको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।